السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب ترشا کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 29 سبق کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا یہ 30واں سبق ہے، سبق نمبر 30 ہے، اور یہ سبق ایک نئی صنف دوحہ کے اندر آتا ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے صنف غزل کو پڑھا تھا 29 تک، ابھی ہمارا 30واں سبق صنف دوحہ کے اندر آتا ہے، اور ہمارے اس میں کتاب میں صرف ایک ہی دوحے شامل ہیں نصاب میں۔ آج ہم لوگ اس دوحے کو پڑھیں گے، اور اس دوحے کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں دوحہ صنف جو ہے یہ کس صنف سے آتی ہے، کس زبان سے نکلتی ہے، اور اس کے کیا تاریخ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو پہلا دوحہ ہے اس صنف کے جو مصنف ہوں گے ظفر گورکھپوری صاحب، ان کی سوانح حیات، ان کی ادبی خدمات کو ہم لوگ سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دوحہ کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے، دوحہ جو ہندی زبان کی ایک قدیم صنف سخن ہے۔ کس زبان کی ہے؟ ہندی زبان کی قدیم صنف سخن ہے۔ دوحہ ہندی زبان کی ایک قدیم صنف سخن ہے، قدیم صنف سخن ہے۔ قدیم فارسی رباعی کی طرح دوحے کی موضوعات بھی عام طور پر پند و نصائح اور مذہب و اخلاق سے جڑے نکتے ہی تھے۔ دوحے کی زبان بھی عام فہم اور سہل ہوتی تھی، یعنی یہ جو دوحہ ہے ان کی جو موضوعات ہوتی تھی، ان کی جو مضمون ہوتے تھے، ان کے ٹاپک جو ہوتے تھے وہ مذہب و اخلاق سے ہی جڑے ہوتے تھے، اور ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ عام اور فہم ہوتی ہے۔ جیسے ہاٹ بازار، گلی کوچے میں چلنے پھرنے والے ہر ادنا آدمی اس زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ دوحے میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ہر مصرع میں ایک وقفہ ہوتا ہے، یعنی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا دوحے کی مختصر سی تعریف، اور دوحے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں اور ان کی زبانیں عام فہم ہوتی ہیں، ان کی مختصر سی تعریف۔ اب آئیے ہم لوگ ظفر گورکھپوری صاحب کی جو ادبی خدمات ہیں ان کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ظفر گورکھپوری کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 5 مئی 1935 عیسوی کو کہاں ہوتی ہے؟ اتر پردیش کے گورکھپور ضلع میں، اور گاؤں کا جو ہوتا ہے بانس گاؤں کے تحصیل کی بیداولی بابو گاؤں میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ بیداولی گاؤں کا نام ہے، اور تحصیل بیداولی ہے، بانس گاؤں ہے اور تحصیل بیداولی ہے۔ آپ کو مختصر سے یاد رکھنا ہوگا اتر پردیش میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پوچھ دے کس اتر پردیش کے کس ضلع میں ہوتی ہے تو آپ کو یاد بتانا ہوگا گورکھپور ضلع میں ہوتا ہے، گورکھپور ضلع میں ہوتا ہے۔ ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کلاسیکل شاعری اور جدید شاعری کے ساتھ ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ ان کی شاعری میں بالکل نیا اسلوب اور فکر و احساس کی نئی تازگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، جاں نثار اختر سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فراق گورکھپوری کن سے مطلب مستفید ہوئے یا کن سے وہ انسپریشن تھی، تو ان کو تو آپ کو بتانا ہوگا سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، جاں نثار اختر، ان لوگوں سے وہ انسپائر تھے، ان سے سبق حاصل کرتے تھے۔ ظفر گورکھپوری کی شاعری کے اب تک 7 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ ساتوں کے نام یہاں پہ درجہ ذیل ہیں، جیسے کہ تیشہ ہے، وادی سنگ، گوکھروں کے پھول، چراغ چشم تر، آر پار کا منظر، زمین کے غریب، اور ہلکی ٹھنڈی ہوا۔ یہ ان کے مجموعے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی مجموعے لکھے ہیں، بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھے ہیں۔ ان میں ہے ناچ رے گڑیا، سچائیاں، یہ بچوں کے لیے ہے، اور زمین کے قریب میں نظموں، غزلوں اور گیتوں کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں دوہے بھی شامل ہے، یعنی یہ دوہے بھی لکھتے تھے۔ تو ان کا دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ زمین کے قریب یہ کتاب ہے، اس میں جو ہے نا نظموں کے ساتھ ساتھ نظموں اور غزلوں اور گیتوں کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں دوہے بھی شامل ہے۔ ظفر گورکھپوری ریاست ہائے متحدہ امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے ہیں، اور عالمی مشاعروں میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ظفر گورکھپوری کن کن دیشوں کا دورہ کیا، کن کن ملکوں کا دورہ کیا تو آپ کو بتانا ہوگا ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اسی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے ہیں۔
اور ये जो बाहर जाते थे आलमी मुशायरे जो होते थे उसमें हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते थे। तो दोस्तों यह था जफर गोरखपुरी साहब की मुख्तसर सी सवान हयात और उनकी अदबी खिदमत। अब आइए हम लोग इस सबक की जो निचोड़ है मुख्तसर समझने की कोशिश करते हैं मुख्तसर तौर पर। तो इसमें उन्होंने लिखते हैं कि जफर गोरखपुरी दोहे बहुत ही सीधे साधे और मतलब सलीस अल्फाज में होते थे। तो हम लोग कुछ दोहे पढ़ते हैं उनकी। देखिए, तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। यानी कहते हैं कि बुलंदी को हासिल करो, जुगनू को पकड़ो, रच सपनों के खेल यानी सपनों के खेल बनाओ, और रात की उम्र इतनी लंबी है जितनी दिए में तुम तेल डालोगे उतनी जितना देर तक जलेगी उतनी ही देर तक रात है। जिस पर्दे में झांके झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप, हद से अथक संजीदगी सच पूछो तो रोग आगा पीछा, सोचते बूढ़े हो गए लोग। तो जफर गोरखपुरी पहले दोहे में जो कहते हैं कि कहा गया कि रात की उम्र लंबी नहीं होती, उनकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है, इतनी ही जितना के किसी दिए में तेल होता है। रात के इस लम्हे को ख्वाब बनने और तफरीह में बताना चाहिए। जबकि तीसरे दोहे में कहा गया है कि बहुत ज्यादा संजीदगी भी ठीक नहीं है। अब यह एक तरह का मर्ज है, यानी बहुत ज्यादा संजीदा रहना भी एक तरह का मर्ज है। बहुत से लोग सोचते सोचते ही बूढ़े हो गए हैं। दूसरे दोहे में अल्लाह तबारक व तआला की अजमत बयान की गई है। कहते हैं कि कुदरत की हर शय में खुदा का जलवा नजर आता है। इस दोहे में शायर ऐसी बातों को बादल और सूरज के हवाले से कहता है, यानी हर चीज में जो अल्लाह की मतलब कुदरत मौजूद है, अल्लाह की कुदरत हर शय पर कादिर है, उन चीजों को बादल और सूरज के हवाले से पेश करते हैं। वह कहता है कि बादल की बूंदों में और सूरज की धूप में कुदरत की कारफरमाई है। चौथे दोहे में इंसान की तंगदस्ती की तरफ इशारा किया गया है और भूखी भेड़िए की मिसाल पेश की गई है। शायर कह रहा है कि भूखी भेड़ के जिस्म में तो थोड़ा सा खून ही है, वह चरवाहे को दूध कहाँ से दे पाएगी। अलबत्ता ताजिर चाहे तो उसके ऊन से हासिल कर सकता है, उससे ऊन हासिल कर सकता है, यानी भेड़िए के ऊपर जो उनके रुएं होते हैं उनसे वो ऊन हासिल कर सकता है, क्योंकि वही चीज उनके जिस्म पर मिल जाएगी। पांचवें दोहे में शहर की भीड़ भाड़ चीख पुकार और बेचैनी जाहिर की गई है, जहां चैन से चार पल भी नसीब नहीं होती। यानी आदमी की जिंदगी भागदौड़ की जिंदगी है, आदमी इधर से उधर से इधर दौड़ता फिरता रहता है और यहाँ चैन नहीं होता है। जो इत्मीनान और सुकून किसी शांत जगह पर किसी पेड़ के साए तले मिलता है वह कहीं और कहाँ। यानी किसी पेड़ के साए तले आराम से बैठे होंगे तो वहीं पे आपको थोड़ा सुकून मिलता होगा, उसके अलावा और कहाँ। शहर में जितना तो बनबास जैसा होता है, शहर में जीना तो बनबास जैसा होता है, यानी कभी यहाँ कभी वहां इधर उधर भाग दौड़ करना रहता है शहरों में। छठे दोहे में शायर कहता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, और सही बात है कि पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती है। जैसे कि इल्म एक ऐसी दौलत है जो पैसा खर्च करने पर मिलता है, यानी पैसा खर्च करने के साथ साथ लगन होनी चाहिए। आप सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लीजिए और आप ना पढ़े तो आपको इल्म नहीं मिल सकते, इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी के हकीकी लुत्फ हासिल नहीं किया जा सकता। बाजार में जो चाहे खरीद लें मगर कुछ और चैन नहीं मिल सकता, मगर सुख और चैन नहीं मिल सकता बाजार में। सही बात है कि आप बाजार से बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सुख और चैन नहीं खरीद सकते हैं। सातवें दोहे में शायर ने बहुत बड़ी बात कही है और वह कहता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि अगर एक को कोई तकलीफ परेशानी हो तो दूसरे को उसका एहसास हो जाए और वह परेशानी में मुब्तला शख्स की मदद को आगे आए। शायर ने उसी को पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने कुल्हाड़ी चलाने के अमल से बताने की कोशिश की है। यानी अगर कुल्हाड़ी चलाए तो कोई अगर पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए तो पेड़ को जितना दर्द होता है तो उसी तरह आदमी को भी दर्द होना चाहिए। वह कहता है कि उससे गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है
कि कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए तो लगे कि मैं ही लहूलुहान हो रहा हूँ। आठवें दोहे माँ और मादरे वतन की अजमत और अहमियत बयान की गई है। शायर कहता है कि पराया देश आखिर पराया ही होता है, वहाँ कोई अच्छा सा ख्वाब नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ माँ के बारे में कहता है कि माँ की दुआओं में आशीर्वाद से इंसान की किस्मत रोशन होती है। नौवें दोहे में बच्चों की टीवी देखने की बढ़ती हुई आदत पर अफसोस जाहिर किया गया है। शायर के कहने का मतलब यह है कि इस आदत से बच्चे किताबें पढ़ने पर कम वक्त देते, जिससे किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं और उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं होता। इसी तरह 10वें दोहे में कंप्यूटर की लत पर तशवीश जाहिर की गई है। शायर की नज़र में कंप्यूटर ने आदमी के सोचने और गौर फिक्र की सलाहियत को छीन लिया है। आदमी अपने जहन का इस्तेमाल अब कम से कम करता जा रहा है। तो दोस्तों इस सबक का यह खुलासा था। अब आइए इस दोहे आज का हमारा जो सबक था दोहा था, इस सबक का खुलासा था ये। अब आइए हम लोग सवाल जवाब की तरफ अपने सेशन को लेकर चलते हैं, अपने सबक को लेकर चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को होती है। कब होती है? 5 मई 1935 ईस्वी। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई। तो आपको उसमें बताया गया था कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। रियासत का मतलब होता है सूबा। सूबा बोलिए, या फिर आप इसको स्टेट भी बोल सकते हैं, STATE स्टेट भी बोल सकते हैं। इसी को रियासत बोला जाता है। तीसरा सवाल है जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है। जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है। तो क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत है। अब हमारा चौथा सवाल होगा कि बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन कौन से 2 मजमूए शाये हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था जफर गोरखपुरी के जवान हयात में, उनके अदबी खिदमात में नाच रे गुड़िया और सच्चाइयाँ बच्चों के लिए लिखे थे इन्होंने। 2 मजमूए नाच रे गुड़िया और सच्चाइयाँ। इसी तरह हमारा पांचवा सवाल है कि जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया। तो जफर गोरखपुरी ने रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और अरब इमारत के दौरे किए। अब आइए हम लोग अपने मुख्तसर सवाल की तरफ अपने सबक को लेकर चलते हैं। ये मुख्तसर सवाल जो है आपका मुख्तसर तरीन से थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। इसमें पहला सवाल है कि जफर गोरखपुरी का कौन सा दोहा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों। तो मुझे तो सबसे जो ज्यादा अच्छा लगा वो जो है ना 7वां दोहा है, क्योंकि इसमें एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए बोला है। और आप लोगों को कौन सा दोहा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जफर गोरखपुरी का 7वां दोहा हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इंसानियत की बात कही गई है और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर हमें एक दूसरे से मोहब्बत होगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर हम एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे, एक दूसरे से हसद करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारा भाई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है कि 5वें दोहे में शहरों के बनबास से शायर की क्या मुराद है। शहरों के बनबास, 5वां दोहा है, इसमें बनबास से क्या मुराद ले रहे हैं। तो शहर की भीड़ भाड़, चीख पुकार और बेचैनी मुराद है, यानी भाग दौड़ की जिंदगी मुराद ले रहे हैं शहरों के बनवासों को। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है कि पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर किस तरह लहूलुहान हुआ। तो पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर इस तरह लहूलुहान होता है, यानी वो बहुत ही ज्यादा दुख का इजहार करता है। यानी कहते हैं कि इंसान का आपस में गहरा रिश्ता होना चाहिए। अगर कोई दो के बीच डरा दरार डालने की कोशिश करता है, यानी उन दो लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है 2 लोगों को, तो दोनों को एक दूसरे के लिए दिल में दर्द हो, और ऐसी दर्द हो कि एक को अगर दर्द हो तो दूसरे को भी उसका एहसास हो, दर्द हो, ऐसी चीज को शायर ने बयान किया है। 5वां सवाल है कि बच्चों के टीवी ज्यादा देखने पर शायर क्यों दुखी है। तो बच्चे ज्यादा टीवी देखने की वजह से किताबों में कम दिलचस्पी दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है
कम दिलचस्पी, माफ कीजिएगा, ये कम दिलचस्पी, चस्पी कम दिलचस्पी दिखाते हैं। यही वजह है कि शायर दुखी है। पांचवा सवाल है, कंप्यूटर से क्या नुकसान पहुंच रहा है? तो आदमी के सोचने और गौर फिक्र की सलाहियत में कमी हो रही है। आदमी अपने जहन का इस्तेमाल अब कम से कम करता जा रहा है। अब हम लोग तवील सवालात की तरफ चलते हैं। इसमें है कि शायर ने अपने दोहों में किन किन ख्यालात का इजहार किया है, उनकी फहरिस्त बनाइए। तो शायर ने अपने दोहों में जिन ख्यालात का इजहार किया है उनके नाम यहाँ पे दर्ज झैल है। पहला है कि शायर ने वक्त के सही इस्तेमाल करने को कहा, बहुत ज़्यादा सोचने से रोका, मना किया है, अल्लाह की अजमत को बयान किया गया है। इसी तरह चौथा जो है, शायर इंसान की तंगदस्ती को भी उजागर किया है। इसी तरह शायर इंसान की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होता है उसको बताया है। शायर लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत की रगबत दिलाते हैं। दूसरा सवाल है, जफर गोरखपुरी के दोहों की खूबियों को वाज़ेह कीजिए। तो जफर गोरखपुरी के दोहे इंतहाई सीधे साधे अल्फाज वाले और आसानी से समझ में आ जाने वाले होते हैं। उनके दोहों का ताल्लुक सीधे सीधे हमारी जिंदगी से होता है। वो कहते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि अगर एक को कोई तकलीफ परेशानी हो तो दूसरे को उसका एहसास हो जाए और वह परेशानी में मुब्तला शख्स की मदद में आगे आए। तीसरा सवाल है कि जफर गोरखपुरी के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। आप जो जानते हैं उनको बताना होगा। मैंने अपने तरीके से कुछ लिखने की कोशिश की है। जवाब है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। जफर गोरखपुरी कम उम्र में ही गजल में अच्छा मकाम हासिल कर लिया था। जफर गोरखपुरी हिंदुस्तान के बुजुर्ग शायरों में से एक हैं। उनकी शोहरत पूरी उर्दू अदबी दुनिया में है और उनका नाम बड़ी इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। उन्होंने गजलें, नज़में और फिल्मी नगमे लिखे हैं। साथ ही साथ दोहे भी लिखे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कई नज़में लिखी हैं। तो दोस्तों, हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप साथ ही साथ आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं हम लोग एक दूसरे सबक के लिए साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अब हमारा जो अगला सबक होगा वो गीत होगा। तो इस गीत के जो मुसन्निफ होंगे सलाम मछली शहरी, इनको हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।